Good morning, everyone. So today we are on our ninth session by Dr. Sarang Ingle from Department of Anatomy, ANU Tibia College, Delhi. So today we will be dealing with the topic Peshi Sharira. Before starting the session, I'd call Ms. Deepika Kapoor to deliver the prayer. ॐ नमामि धन्वन्त्रि आदिदेवं सुरासुरे वन्दितं पादपादनं लोके जरारुके भया मृत्युनाशं धतारिशं विभे औषधीनां धन्वन्त्रि प्रमानाथं सर्वरोगे निवारितम् आयुर्वेद प्रवक्तारं वन्दे पीयूषं धारयम् सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया ॐ शान्तिः 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 ॐ Thank you, Ms. Ratika. So the platform is all yours. You can start your class. Yes, sir. Thank you, Dr. Arun, sir, for giving me this opportunity. Good morning, all students. Today's topic is about Peshi Sharing. Okay, it is a very short topic. Start with that first. सबको आपको एक बातें clear होनी है कि तो first is the what is meant by Peshi. What is the concept which is described in Ayurveda as a Peshi? Okay. तो सबसे पहले the definition of Peshi. What Sushruta Dalhan Tika Sushruta Sharir Adhyay 5 Shlok number 38. Okay, that Sushruta has clearly Dalhan has clearly defined what is meant by Peshi. Peshi की व्याख्या बताते हुए Dalhan ने यही कहा है कि मास अवयव संघातम परस्परम विभक्तम पेशी इति उच्यते. This is the definition of the Peshi. See, let's एक बात आप क्लियर होनी चाहिए. One thing should be clear that each and every aspect when Ayurveda describe about the anatomy of the body, there is one criteria should be fixed. Okay, this criteria is applied to that body, and that is called that part. That means in case of Peshi, what is the criteria is the criteria is that the Peshi is the structure of that Peshi is that body structure where the mass avayav उनका संघात मास अवयव संघात हुआ है, it may happen and it get differentiated. Okay, that in English we have to clarify that the mass means that is the fleshy part. Okay, that is the flesh. Okay, avayav means that flesh part. Sanghat means united. That means mass avayav sanghat. That means these fleshy parts get united with each other, but after union they may get also differentiated with each other. That each and every this union is differentiated, and that structure, if these criteria should be fulfilled by that body part should be called as the Peshi. Okay, that means when I repeat it, that is mass avayava sanghat. That means Peshi is that part which is made up of the flesh part, and mass avayav से बना हुआ one part जो body का part रहेगा, that is called a Peshi. Okay, that is the clear-cut definition of the Peshi. ये criteria जो body part आपका fulfill करेगा उसको आप body में बोलोगे Peshi. Okay, यानी Peshi क्या है? That is one part or part of the body where the different mass avayavs, that means the fleshy part, get united and get differentiated with each other. That is called what? Peshi. Okay, चक्रपाणी जो थी चक्रपाणी ने एक और अच्छे से लिया है कि that is Peshi is called mass खंड also. Peshi
मांस खंड यानी पेशी क्या होते हैं, मांस का खंड, खंड यानी इट इज अ वेरी मच लोबुलेटेड पार्ट ऑफ द मांस, मांस यानी दैट इज द फ्लेशी पार्ट, ओके, पीस ऑफ फ्लेश दैट इज कॉल्ड योर मांस, ओके। देन अभी बात आ गया आपकी पेशी की, लेकिन बाद में बात आती है सेकंड पॉइंट जो है आपका, दैट इज हाउ द पेशी इज फॉर्म इन द बॉडी, हाउ द पेशी इज फॉर्म इन द बॉडी। ये तो आपने देख लिया कि वो मांस अवयव का संघात है, उसके बाद वो परस्पर विभक्त हुआ है, परस्पर, ये जो श्लोक है इसमें हर एक शब्द का एक मीनिंग है, मांस अवयव संघात परस्पर विभक्त, अरे ये हर एक मीनिंग का मैंने आपको ये मतलब बताया कि मांस का मतलब होगा आपका दैट इज द फ्लेशी पार्ट, अवयव दैट इज द फ्लेशी पार्ट, जो पार्ट होगा, मांस का मतलब है फ्लेश, अवयव का मतलब पार्ट, संघात दैट मीन्स दिस फ्लेश पार्ट गेट यूनाइटेड, आफ्टर यूनियन क्या होगा, दैट इज परस्पर विभक्त, परस्पर मीन फ्रॉम ईच अदर, विभक्त मीन्स इट इज शुड बी सेपरेटेड, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पेशी। Then how this process is formed in the body, that is called your उत्पत्ति of the पेशी, ठीक है, how this उत्पत्ति is formed, okay, so that was this is the Sushrushari fourth अध्याय, that is 28 and 29 श्लोक, that is यथार्थम उष्मना युक्तो वायु स्तोत्र सांसी दारे अनुप्रविश्यम पिशितम पेशी विभर्जते तत्। इसमें का जो सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन जो है वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अनुप्रविश्यम पिशितम पेशी विभर्जते तत्, यानी क्या मीनिंग हो जाता है कि पित्त युक्त वायु जो रहेगा, मेनली वायु, पित्त युक्त वायु, अनुप्रविश्यम, कहा अनुप्रविश्यम मीन्स टू गेट एंटर्ड, कहाँ पे एंटर्ड होगा, तो दैट इज इन द पिशित, पिशित का मतलब फिर से वो मांस खंड, एंड मांस खंड में एंटर होने के बाद इट इज विभजते into certain structure that is called peshi, that means the peshi vibharjate yatha, okay, that means in piece anupravisham pishitam peshi vibharjate yatha, that means that vayu which is united with pitta or ushma entered into the pishitam, pishitam and that is the mass khanda, and divide the pishitam into certain structures that are called your peshi, and that dalan is called as the peshi mass khand, okay, this is your utpatti of the peshi, okay. Then after that point is that what is the number of the peshi in the body, ये आपने देख लिया कि what is the definition of peshi, उसके बाद how it is formed, ठीक है, फॉर्मेशन में ये दो चीजें आपको बराबर ध्यान में रखनी, एक है उसका वायु और दूसरा है उसका पित्त उष्मा, that both structures are very much important, okay, for the activation of the peshi, okay. After that the numbers of the peshi in the body, okay, number is very clearly mentioned in his body, that is the, in case of human body according to Ayurveda, that is 500 peshis are present. These peshis are divided according to the Sharanshari, that means 6 parts of the body has been divided for the study purpose, and in each part the number of peshis are different, that means in case of shakha, shakha means limbs, jo upper limb and lower limb, that should be the peshi should be 400, okay. In case of koshta, that means koshta means that is trunk, back side and front side, 64 peshis are present, and in case of griva, that means upper clavicle ke upar, above the clavicle, that should be 34, okay? This is the number of peshi present in the male body. In case of female, 20 number of peshis are get extra, okay? These are peshi are surrounded in the stud, that is in the breast region and in the garbhashay region. In the two regions, this 20 peshi get extra, okay. That means in case of female, there should be 520 peshi, okay. Then after that, these 500 or 520 peshis are differentiated into number of parts, okay, that are called as the types of the peshi, prakar, peshi के प्रकार. अभी पेशी के जो प्रकार की है उसका भी criteria fix है. That criteria should be the how that peshi are how the structure of the peshi is that, okay. That is the first prakar of the peshi. First is the bahal. Bahal means
वो पेशी जो एक्सटेंसिव है, दैट इज कॉल्ड योर बहल पेशी, एक्सटेंसिव. Then mrudu. Mrudu is again, it is smooth in manner. It is very much smooth. Then after that, slakshna. That is soft, slippery. Slippery, slip and soft. That is called slakshna. Then karkash. That is hard or rough. Okay, hard or rough. That peshi should be called as karkash. These are the peshi prakar according to Sushruta. That means 500 of these patients in case of your body, when you see, these are subdivided into these different types. Okay, so this is called your patient prakar. Okay, after that point is should be the, then again the last point of this topic is the, what is the role of the patient? Role of the patient. Okay. That for the role of the patient. Again, Sushruta Sharir, 5th अध्याय 49 श्लोक. That means उसमें उन्होंने कहा है कि पेशी का कार्य है, that is the role of the patient or action of the patient or the that is सिरा. वो श्लोक ऐसा है, सिरा स्नायु अस्ति पर्वाणि संध्यस्त शरीराना. सिरा स्नायु अस्ति पर्वाणि संध्यस्त शरीराना पेशी भी सवृत्ता अन्यत्र बलवन्ति भवन्ति. There are the two main words are here in this श्लोक. That is called सवृत्ता अन्यत्र and second is बलवन्ति. Okay, दो मेन रोल है उसके पेशी के आपके बॉडी में. एक है संवृत्त. संवृत्त का मतलब है to cover up और राउंडेडली कवर अप. ओके, तो इसके लिए भी सुश्रुत ने बोल दिया है, सुश्रुताचार्य ने, कि किसको कवर अप कर सकती है पेशी, किस किस को कवर अप करेंगी या किस किस को झांक के रखेंगी आपके इसमें. तो दैट इज द फर्स्ट सिरा स्नायु, द टेंडन्स और द नर्व्स. अस्थि पर्व, दैट इज द बोनी एंड पार्ट ऑफ द बोन और बोन. एंड संधि, दैट मीन्स द जॉइंट. इन सभी बॉडी पार्ट को कवर अप करना ये मेन रोल है आपका पेशी का. दैट वाई ये टर्म आया है आपका सवृत्त अन्यत्र. ओके, ये फिर से मैं श्लोक रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए. सिरा स्नायु अस्ति पर्वाणि, सिरा स्नायु अस्ति पर्वाणि संध्यस्त शरीराना पेशी भी सवृत्त अन्यत्र. ओके, दैट वाई सवृत्य अन्यत्र, अन्य ने ये सभी चीजों. ओके, एंड सेकंड जो शब्द है दैट इज कॉल्ड योर बलवंती शरीराना. ओके, बलवंती का जो बल का जो मीनिंग होता है, दैट मीन्स पेशी गिव्स द स्टैमिना, पावर, फोर्स एंड स्ट्रेंथ. दीज आर द इन इक्वल मीनिंग्स. दैट इज गिव द फोर्स और स्ट्रेंथ, इट गिव द स्टैमिना टू द बॉडी. ओके, दैट इज द रोल ऑफ योर पेशी इन योर बॉडी. ओके, दैट श्लोक शुड बी क्लियरली विजिबल. ओके, ऐसा ही एक श्लोक आपकी शारंगधर के, शारंगधर संहिता है, उसमें भी यही कहा है. मास पेशो बलाय, मास पेशयो बलाय. बल यानी वही स्टैमिना, उसका स्ट्रेंथ, उसका फोर्स. ठीक है, वो आपका क्रिएट करता है पेशी. तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेशी स्ट्रक्चर. ठीक है, पांचभौतिक अगर आप पेशी का देखना चाहते हो जो पंच महाभूत के हिसाब से, पेशी में वायु, पृथ्वी, ये दोनों का ही बहुत ज्यादा रोल है. त्रिदोष के हिसाब से अगर देखा जाए तो वायु और कफ, इन दोनों का ही दोष का प्राधान्य आपको पेशी में मिलेगा. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी. तो व्हाट इज द रोल ऑफ वायु इन द पेशी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कफ धातु इन द पेशी. ओके, वायु आपको सबको फिजियोलॉजी में आपने देखा कि वायु का मेन काम है चलन. ठीक है, या मूवमेंट. तो पेशी के द्वारा जो भी मूवमेंट होंगी या पेशी जो मूवमेंट इनिशिएट करेंगी वो बिकॉज ऑफ वायु के वजह से होंगी. और कफ का काम है आपका स्थिरत्व. ठीक है, या जो आकार है जो पृथ्वी दोष से आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर कफ. ठीक है, दैट ये दोनों चीजें और ये श्लोक. ठीक है, इस हिसाब से आपको अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे आप पेशी का अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद एस्पेक्ट. जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये पेशी शारीर में सिर्फ और सिर्फ मैं आयुर्वेद एस्पेक्ट से ही ले रहा हूँ.
जैसे मॉडर्न एस्पेक्ट आपको ऑलरेडी किसी ने ले चुके होंगे. That's why we are only focus on this Ayurveda aspect in this today topic. That is your पेशी शारीर. ठीक है. तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में आपको ये देखना है कि ये जो श्लोक आपने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज द संवृत्ति अन्यत्र बलवंती, कि अगर पेशी बॉडी में आपका डैमेज हो जाए या विकृत हो जाए तो क्या क्या चीजें आपकी हो सकती. ओके. सपोज इन केस ऑफ पेशी में अगर वायु दोष का वायु का क्षय हो जाए या वात का प्रकोप हो जाए पेशी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो पेशी का जो वायु का जो कार्य है जो पेशी के लिए है, दैट मीन्स इट शुड बी द मूवमेंट, इट शुड बी हैम्पर्ड. ठीक है. दैट मीन्स अगर पेशी की जो मूवमेंट है वो अगर हैम्पर्ड हो रही है तो आप समझ लेना कि वो बिकॉज ऑफ वायु के वजह से. ठीक है. देन जो पेशी का जो स्वरूप है, यानी जो मसल का एक स्वरूप होता है पेशी, दैट मीन्स इट शुड बी कंपेयर्ड विद द मसल. उसका जो स्वरूप है आप पेशी का, ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका आकार अगर शेप बढ़ रहा है, साइज, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि वहां पे कब दोष आपका विकृत हुआ. ठीक है. ये दोनों चीजें आपको देखनी है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स. पेशी में अगर प्रॉब्लम आ गया तो किसके लिए आ रहा है, ये दो चीजें आपको देखनी, किस वजह से आ रहा है और उसमें कौन सा दोष आपको प्राधान्य देखनी. यानी सपोज पेशी के अंदर आपकी जो मूवमेंट है या जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो अगर कम हो रही है, यानी पेशी एखादा उस पेशी को अगर एक काम दिया है, वो काम अगर कम हो रहा है तो सपोज लेना आपका इसमें वात का बहुत ज्यादा रोल. ठीक है. देन अगर उसी पेशी का शेप या साइज इसमें एब्नॉर्मलिटी आ रही है आपको, तो दैट विल शुड बी लीड टू द कफ. हेलो हेलो. हेलो सर. हाँ सर, आवाज आ रही है? जी सर. सॉरी सर. या आ रहा है सर. सॉरी. नो बीच में कुछ कनेक्टिविटी हो गई सर. यस सर. यस. ओके. कोई बात So नहीं. that means, thank you sir. So the last point should be the how you assess the that पेशी विकृत है या नॉर्मल है या abnormal है. तो that means उस पार्ट का, यानी जो पेशी जिस पार्ट की होगी उस पार्ट का आपका बल देखना. बल में आप क्या क्या देख सकते हैं, उसका स्टेमिना, यानी हाउ इट सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उसका फोर्स देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं. ठीक है. तो इस हिसाब से आप उस बॉडी पार्ट को असिस्ट कर सकते हो कि पेशी नॉर्मल है या नहीं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेशी शारीर. ठीक है. मैं फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर लेता हूँ ये चीजें. सबसे पहले भी स्टार्ट जब आप करते हो, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज मीन बाय पेशी. आयुर्वेद में किस क्राइटेरिया के अंतर्गत पेशी को रखा गया है, यानी कौन से बॉडी पार्ट को आप पेशी करोगे. ठीक है. उसके लिए डलन ने एक अच्छा क्राइटेरिया आपको दिया है सुश्रुत ने, दैट इज मास अवयव संघात परस्परम विभक्तम पेशी उच्यते. यानी बॉडी का ऐसा पार्ट जो मांस के अवयव मांस के अवयव की संघात से बना हुआ. मांस यानी फ्लेश
अवयव यानी पार्ट यानी फ्लेशी पार्ट से यूनाइटेड हो चुका है, संघात हो गया है, इस फ्लेशी पार्ट का यूनियन हुआ यानी एक दूसरे के साथ वो यूनाइट हो गए हैं। एंड यूनियन होने के बावजूद, क्योंकि हर एक पेशी जो रहेंगी वो मांस अवयव ही रहेंगी, संघात ही रहेंगी, लेकिन वो अलग अलग होनी चाहिए। दैट वाई इट इज कॉल्ड परस्पर विभक्त। वो परस्पर आपकी विभक्त हो चुकी है। हर एक मेसल का पार्ट एक ही रहेगा, पेशी का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एक ही रहेगा, कौन सा, मांस अवयव संघात। लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसका परस्पर विभक्त यानी सेपरेटली फ्रॉम स्ट्रक्चर, शेप, साइज वाइज, दैट शुड बी कॉल्ड योर पेशी। ओके, देन हाउ दिस पेशीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। उसके लिए ही सुश्रुत ने कहा है कि यथार्थम उष्मना युक्तो वायु श्रोत्र सांसी दार्य। स्रोतस को बनाने के बाद वो जो वायु होता है, अनुप्रविश्यम, अनुप्रविश्यम इज एंटर्ड, किस पे एंटर्ड होता है, अनुप्रविश्यम इन द पीशितम, दैट मीन्स जो मांस का पार्ट है। एंड उसके बाद क्या करता है, पेशी विभाजन, उस पेशी को पेशी में डिवाइड कर देता है एक में के इस, ठीक है। तो दैट शुड बी द उत्पत्ति ऑफ द पेशी। देन number of the पेशी should be 500 in case of male and 520 in case of female. Then after that what is the पेशीज type, अलग अलग टाइप के जो ये बलाई विभक्तम का आ जाता है ना, तो that should be the first बहल, that means the extensive पेशी should be included into the बहल part. Pelo, that is delicate, thin, fine peshi should be included into the pelo. Then stool, that is bulky or large, small size peshi should be included into anu. Broad shape, that should be pruthu. Vrutta, circular or rounded shape. Rasva, that is short. Dirgha, that means long. Sthir, that means firm in manner. Mrudu, that should be smooth in manner. Slakshna, that means it should be slippery or soft. And karkat, that means hard or rough. Okay, these are the prakars of the peshi. Then what is the role of the peshi in the body? That is firstly, तो रोल है, दैट मीन्स टू, दो श्लोकों में सब रोल आपका सुश्रुत ने बोल दिया। दैट इज द सिरा स्नायु अस्थि पर्वाणी संध्यस्त शरीरानाम पेशी भी, इसमें भी हर एक पार्ट का एक मीनिंग है। पेशी भी संवृत्त अन्यत्र, पेशी क्या करता है, सिरा स्नायु अस्थि, अस्थि पर्व और संधि, इनको संवृत्त, संवृत्त का मतलब होता है टू कवर अप, राउंडेड अप। उसके बाद बलवंती भवेंता, किसको बल प्रदान कर देगा, शरीर, ठीक है। तो बल का मतलब है उसका स्टैमिना, फोर्स, उसकी स्ट्रेंथ, वो बढ़ाना आपका बल का काम, ठीक है। इसके बाद आपको ये असेस करना है कि रोल ऑफ त्रिदोष इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशी। तीन दोष है, आपको पता है, वात, पित्त और कफ। पित्त एनर्जी पैदा करने का काम करता है, उसमें पित्त का काम ही है अग्नि उत्पन्न करना। दैट्स वाई अगर अग्नि अगर वीक हो गया तो पेशी का कार्य भी अपने आप कम होते जाएंगे, ठीक है। वायु का काम है इस पेशी में मूवमेंट उत्पन्न करना, ठीक है, तो वो काम है आपका वायु का। कफ का काम है उसको जो आकार है, शेप है या साइज है, वो आपका बिकॉज ऑफ कफ के वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट भी देखना है कि आप आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से क्या क्लिनिकली देख पाओगे। तो हाउ यू टेस्ट द क्लिनिकली पेशी, दैट शुड बी द फर्स्ट द बल ऑफ दैट बॉडी पार्ट, ठीक है, बल ऑफ दैट बॉडी पार्ट। अरे सपोज अपर लिम्ब की पेशी का बल आपको देखना है तो वो बल देखना है, वो बल अगर आपका कम हो रहा है तो दैट मीन्स उस पेशी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना। सेकेंडली देखना है वायु का कार्य बराबर हो रहा है क्या नहीं पेशी, वायु का कार्य यानी द मूवमेंट्स ऑफ दैट पेशी शुड बी क्लियरली यू शुड विजुअलाइज। देन पित्त अग्नि बराबर है, जो मांस धात्वाग्नि है वो बराबर इसमें होना चाहिए प्रॉपरली। एंड देन थर्ड इज द कप, दैट मींस उसका जो साइज है या शेप है वो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो पेशी की प्रॉपरली होनी चाहिए। दैट मीन अगर वो नहीं हो रही तो दैट मीन्स वो कफ दोष का ये हो सकता है, वहां पे डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेशी शाइन।
इसमें किसी को भी आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक डाउट आया है Yes, कि sir. differences in number of पेशी among males and females. Difference is that is in case of male there are only 500 patients. Okay. In case of female, this 20 patient get extra and they are surrounded or covered up into two regions. One is stan region that is surround the breast, and second is in the garbhashay region. Because these two organs are extra present in the female. ठीक है, तो दैट्स उनके लिए बॉडी पे जो मसल कवर अप करके रहेंगे उसके लिए 20 पेशेंट एक्स्ट्रा होगा. I hope that doubt is cleared. If there are any other further doubts, you can kindly ask. Either you can put it in the chat or you can directly ask, unmuting yourself. Sir, one more doubt came. Yes, sir. Sir, what is the basic difference between Mamsa and Peshi? Sir, the basic difference between mass and tissue is the mass is the basic part of your body. That is जो सप्त धातु that is called the सप्त धातु जिनसे शरीर बना है आपका, उसमें से एक है आपका मास. ठीक है, तो मास इज प्रेजेंट एंड द पेशी इज द पार्ट ऑफ दैट मास. ठीक है, ओके. मास से और भी बॉडी स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं, जैसे मास धरा कला है वो भी आपका मास से बना है, या सर्टन जो ऑर्गन्स में जो कवरिंग्स होता है वो भी मास से बना है. तो दैट इज द पेशी इज अ पार्ट ऑफ दैट मास ऑफ इट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मास एंड पेशी. पेशी इज द that is the sub form of your mass. Mass is basic structure. So, sir, one more doubt came. Then, if we are comparing that with the modern anatomy, the muscles, Yes. yeah, so that should be considered as peshi or a part of Mamsa Dhatu itself. Clinically, it should be Specifically. considered. Specifically, it should be considered correlated with the muscle. Okay. Clinically, when you treat in the Ayurvedic manner, it should be considered as a mass dhatu, part of the mass dhatu. Okay, sir. Are there any further doubts? I hope, sir, there are no further doubts. Yes. So this is very short topic. That's why I concluded in very short time. Yeah. And we also know that you are busy and you are going to have your COVID duty from today. Yes, So will not be disturbing you too much, sir. Thank you so much. Thank you so much for giving your time today, in spite of all your busy schedule. I hope the class gave a good knowledge to our students also. If there are any other further doubts coming, I'll directly WhatsApp you or I'll put that out in your mail so Yes, that you sir. can give a reply and I'll convey it with the students. Yes, sir. Sure, sure. Thank you, Dr. Okay, Anu, for sir. giving Thank me you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. So with your permission, I'll wind up the session. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.